minus infinity to infinity. Someone is sure about this option? Okay, leave these two. And what is the range then? Range. Sir, greater than 0. Okay, so you mean, how should I write, in interval form or maybe? So R positive. Sir, exclusive 0 to infinity. Okay, so 0 open interval to infinity positive. 0 is not inclusive in the range. Good, no 0. Because you cannot find any value of x such that this should be equal to 0. This cannot be equal to 0 for any value of x. ठीक है? So 0 Sir, is not range. 0 is not part of range. मतलब Yes. आप y range को 0 लेके जाना चाह रहे हैं, तो e of x should be equal to 0. There is no x such that y is equal to e of x. सर इसमें y इंफिनिटी तक तो नहीं जाता, इसमें एक सर्टेन वैल्यू होती है, आई गेस 2 पॉइंट समथिंग होती है, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे याद नहीं है वो अगर e की wait अगर e की 1 वैल्यू हो then it is 2.71 blah blah blah, but e power 2 हो then it is 7 point something हो. अगर e power 3 4 5 100 Okay, sir. also it rushes to infinity. Okay, सही now we are not settled for what this I mean range domain part. So this is not a correct. This is not correct. This is correct because there is no issue when we use minus real numbers, -2, -3, or negative real numbers in this function. For example, because negative real numbers poses no problem or no issues in function. Let's say, for example, e power -1, this will be simply 1 over e. It means 1 over 2.7 and blah 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 blah. ठीक है? 2.71. So this will be some real number. और इसी तरह अगर e power -100 पुट कर दें, 1 over e power 100 and 1 over यहाँ कोई बहुत ज्यादा बड़ा नंबर होगा. ठीक है? ओके सर. और ह्यूज नंबर, बट उसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका जो है मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा. नो, दिस विल बी 0.000 कोई स्मॉल नंबर आपका बन जाएगा. ठीक है ना? सही है. सो दिस इज करेक्ट domain. This is not the correct domain, -infinity to 0. ठीक है मैं I will share these slides with you later. Maybe I will upload it. And so range क्या होगी? Negative infinity to positive. No, पॉजिटिव हमेशा उसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का हमेशा पॉजिटिव आएगा. ठीक है? The y की वैल्यू is positive always. Is always positive. ठीक. Okay, and there is another इसी तरह का एक और टेढ़ा मेढ़ा एग्जांपल है. टेढ़ा है पर मेरा है. ठीक है? And that is y is equal to log of x. लॉगरिथमिक फंक्शन आपने कॉलेज मैथमेटिक्स में डिस्कस किए हुए हैं, पढ़े हुए हैं, उनको कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग डेट ग्राफ पेपर एंड ऑल, लॉगरिथमिक टेबल. ठीक है? तो इसमें आप नेगेटिव नंबर इनपुट नहीं दे सकते बिकॉज नेगेटिव्स का लॉग डिफाइन नहीं है.
Do you remember that, right? फिर एक बार recall करा दो. So logarithmic function is only defined for x is greater than r equal to 0. ठीक है, नेगेटिव अगर x देंगे तो उस पर लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग फंक्शन कंफ्यूज हो जाता है, वो नेगेटिव रियल नंबर्स एज ए इनपुट प्रोसेस नहीं कर सकता है, ठीक है, उनको ऑपरेट नहीं कर सकता। सो इसकी जो डोमेन होगी दैट विल बी आर पॉजिटिव एंड विच इज इक्वल टू 0 इंक्लूसिव टू इंफिनिटी, ठीक है। And range, I leave it as a homework. Find in book in lecture notes के इसकी जो है वो सॉरी या तो ये 0 इंक्लूसिव होगा? जी हाँ, 0 पर लॉगरिथमिक 0 होता है, I guess. Okay, so this is homework for you. Okay, enough of this couple of examples about this domain and range. This was a teaser and I think a brainstorming kind of examples. So we stop sharing this and why did I close it? A window, my entire screen, and first lecture. So I'm using PowerPoints जो मैंने अपलोड भी किए हैं उसमें LMS में, और इनके लेक्चर नोट्स भी अपलोड किए हैं। लेक्चर नोट्स ये हैं, it's a 90 pages handout, but most of the things are just overly written. There is no use of reading all this stuff. Just go through the catchy, eye-catching form mathematical expressions, वो आपको बहुत कुछ मतलब बता देती है कि लिमिट्स और या इस तरह के हाइलाइटेड पार्ट्स जो हैं इन टेक्स्ट में, ठीक है। एंड स्लाइड्स are just explaining what is in these notes, ठीक है, about these sections. जो इसमें lecture notes में sections हैं, मैं उसी पैटर्न के साथ हम चलेंगे, ठीक है। Let me jump to we will progress with these sections: tangent line and rate of change first, and then limit, its definition, one-sided limit, and then properties of limit, and then how to compute limit of the functions, ठीक है। फिर अगर infinity limits हो तो इन slides में भी हम इसी उसमें तरतीब से लेट से। Okay, so notes are there for you. This is web page. You can always have lecture notes from there. मैंने आपकी ease के लिए LMS पे upload कर दिए हैं। And so presentation which I use in the classroom. Now this is our virtual classroom. We have 1 hour left, and I want to talk if you allow me to talk, I want to finish these limits in today's lecture. आउट प्लान के मुताबिक, आउटलाइन और प्लान के मुताबिक, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड लिमिट्स, do you have any best starting questions or any confusion about limits? So I can take questions. I can manage time. No sir. You do not have can you see the screen, right? Yes sir. स्क्रीन आपको नजर आ रही है ना, ये प्रेजेंटेशन से? Yes sir. Yes sir. Okay, so limits are a mathematical concept, ठीक है। And limit does not exist, but it does in mathematics basically, ठीक? There is mathematics is always different, unusual, so in math limit exists. Well, the limit problem came into being basically from physics, this velocity problem, ठीक है। वो जो इतनी अगर डिस्टेंस है और इतना टाइम है, then derivative and kind of velocity, and you know the definition of that derivative,
उसमें h approaches to 0, याद है आपको? ab initio definition of derivatives, classical definition of derivative जो कुछ इस तरह. So derivative of f of x is equal to f of x plus h minus f of x divided by h approaches to 0 limit. कुछ याद है? नहीं सर. ये डेरिवेटिव की एप्लीकेशन नहीं की है आपने? एनीवन? सही. किसी को भी रिकॉल नहीं हो रही है? This is derivative of f. No? Okay. We will, discuss. So this is just a background. अगर आपने नहीं की, then अगर आपने नहीं की तो then you just listen what I'm trying to orate or narrating you कि limits का जो background है, जो origin है, या जहाँ से उसने pop up हुआ था problem, that was velocity problem in physics. ठीक है? And it is related to tangent one. Now tangent is a relatively simple concept as compared to the limits concept of the limit, and you know what tangent is, right? I'm sure you already know. Many of you. So tangent क्या चीज है? Sir, tangent is a line. It follows. It's a line. Yes. It touches a curve. All right. So here is the definition. Thus, tangent to a curve is the line that touches the curve. ठीक है? So this is definition of tangent, and in simple words, tangent line should have the same direction as the curve at that point. ठीक है? इसका मतलब समझ में आ रहा है? For example, this is curve. Now, जी सर बिल्कुल आ रहा है. तो this is tangent, ठीक है? This is tangent, this is curve. Now, इस tangent का और इसका direction same कैसे है? In other words, a tangent line should have the same direction. That's interesting, right? सर ग्रेडियंट सेम होगा. सर ग्रेडियंट होगा. Do not confuse with too much difficult terms. I do not know what is gradient. Tell me simple. I am a very layman, right? मतलब एक आप नाड़ी को बताएं, आप मुझे कैसे समझ आएगा ग्रेडियंट क्या होता है? रिपीट कर सकते क्वेश्चन? जी? रिपीट कर सकते क्वेश्चन? मतलब आप ग्रेडियंट का मुझे कैसे पता बच्चे? मैं स्लोप है. ग्रेडियंट जो होता है वो स्लोप होता है. Okay, so you want to say मतलब वो सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा होगा कर्व को. सर वो जो एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा उसकी जो पॉइंट की डायरेक्शन होगी उसी में जो है वो टेंजेंट भी मूव कर रहा होगा. सर जो स्पेसिफिक ये पॉइंट कौन होगा, बोला है? ये कौन बोला है? वेट इससे पहले कौन बोला है? सऊद रफीक. ओके. सर मैंने बोला. आपने जो बोला था वो दोबारा बोले, जो खातून बोल रही है. मैंने बोला था कि ना जो कर्व पर जो ना सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा जो होगा ना, तो इसलिए वो जब एक ही डायरेक्शन में बनेगी ना, इसलिए. ठीक है. सही. आप माहम शाह ही हैं? जी माहम शाह, राइट? माहम शहजाद. ओके, शहजाद. ओके, सो या. एंड अभी कुछ एट द एंड मैंने किसी को रोका था, वो भी कह दें. सर वो ये कि वो जो स्पेसिफिक पॉइंट होगा वो उसका जो राइज ओवर रन होगा वो इक्वल होगा टेंजेंट की लाइन के. से इट अगेन. उसी पॉइंट पर राइज एंड रन वो इक्वल होगा टेंजेंट की लाइन के राइज ओवर रन से. ओके, ठीक है. सो well, I think you all explained with different words the same thing, but thank you, Saud. You explained the way I liked it. Maybe, yes. Can you repeat it? Yes, sir. Sir, when a tangent touches a point, तो जो पॉइंट की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में जो टेंजेंट भी मूव कर रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं कि उसकी सेम डायरेक्शन. Okay, good. So apparently when you look at this line from here to here,
सो इसका डायरेक्शन ये है, ठीक है। ये उसका डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन हम इसीलिए राइट पे मेजर कर रहे हैं कि x इज इंक्रीजिंग इन दिस वे, ठीक है ना। और दिस इज फॉर एग्जांपल y, तो x इस तरफ पॉजिटिव जा रहा है तो ये टेल है। नाउ कर्व का डायरेक्शन ये है, सो इट्स नॉट क्लियर दैट के टेंजेंट का डायरेक्शन ये और कर्व का ये, बट ये कह रहा है कि टेंजेंट लाइन शुड हैव द सेम डायरेक्शन एज द कर्व, बट in the end जो उसने लिखा है at the point of the contact. Now this is important, so they have same direction only at this point of contact. It means ये जो यहाँ point पर ये दोनों meet कर रहे हैं, यहाँ पर इन दोनों की दोस्ती है, मतलब ये दोनों same behavior exhibit कर रहे हैं, show कर रहे हैं कि हमारा direction एक ही है उस point पर, या उसकी बिल्कुल क्लोज विसिनिटी पे, इतनी क्लोज के वो उन पॉइंट्स के साथ विसिनिटी या नेबरहुड बिल्कुल अटैच ही है। नाउ डू यू गेट द आइडिया? Yes, sir. Does it need any more explanation? Maybe No. just go through the slides, and if you have just questions, raise your hand, because if you do not understand this one, your all calculus will be shady. So just try to grasp this lecture. Okay, so tangent problem, this is origin of the limits, concept of the limits. Try to understand this. Okay, for a circle we could simply follow this idiot guy, and who said that tangent is a line that intersects the circle once and only once. So for circle एक लाइन उसको ट्वाइस कभी भी नहीं कर सकती, बिकॉज सर्कल इज लाइक रोलिंग ऑन दैट स्ट्रेट लाइन, तो एट वन टाइम वो सिर्फ एक ही दफा करेगी, ठीक है। नाउ दिस डेफिनेशन वाज in that time, I mean it was like simple, very simplistic definition for this simple curve circle, but अगर आपको साइन का ग्राफ याद है, इस तरह होता है ना साइनोसाइडल वेव, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो उस पर एक टेंजेंट उसको कई बार टच कर सकता है ऊपर से। तो दिस डेफिनेशन इज नॉट, आई मीन cannot be generalized to all functions. A counter example is that sine function के उस पर नहीं मतलब लगती है definition. So this is only for this circle, ठीक है। so yeah, so this slide is definition by Euclid, definition of tangent. Now look at this curve C, okay, and there are two lines L and T. So this L line, the blue line, it intersects C only once in this segment of the curve, but instead of yeah, hard to say, intersecting only at one point, it does not look like a tangent. So up your tangent, okay, I like to listen from you the definition of tangent again, just to recall. कोई टेंजेंट की डेफिनेशन बोल रहे हैं, बुकिश डेफिनेशन या जो फॉर्मल डेफिनेशन है जी। Sir, tangent is a line that touches a curve at a one point. It touches or crosses at one point. Ji. Okay. Now remember this definition. This is correct definition. So this blue line is a tangent. There are straight line but touch the curve. Which touches the? Yes, sir. This, sir. It touches the curve. Okay. So this does not. This blue line does not touch the curve. It touches. नहीं सर, ये क्रॉस कर रहा है। What is difference between crossing The and line that touches a curve from
The line that touches the curve from the outside, not intersecting it. What about this purple line? सर इसमें टेंजेंट जो है वो रेडी लाइन है. Okay, what सर about इसमें this पर्पल T लाइन है now? टेंजेंट इसमें. This is purple is tangent line, but it also crosses from this point. So it's a tangent of point B, the purple line P. All right, so this purple line is a legit tangent only at this point. So remember, the concept of the conclusion of all this discussion is the concept of the tangent is constrained with one fixed point. ठीक है? So this is tangent at point P. हालांकि ये इस point पर this is let's say point Q, but we are not bothered about this So point. this is intersection. This line, this is intersection, but if I mean globally look at this point, this is intersecting. So I could let's say refuse to accept this as a tangent line, but no, look at this section at this point particularly. So this T is a tangent line at this point. So concept of tangent is related to, or you cannot vaguely define without mentioning that point. आप generally नहीं कह सकते कि okay this is tangent. जब भी tangent to curve कहेंगे, you need to have that point in mind. या problem में आपको वो point भी हो. This is the bottom line. Did I make my point? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Now, just warming up example. Okay, so find the equation of the tangent line. Now, remember the tangent line is a straight line. उसकी जो equation बनेगी, and that should be a linear function. ठीक है? Do you agree with that? सर ये डिफरेंशिएट होगा फर्स्ट, फिर ग्रेडियंट आएगा, फिर टेंजेंट गिराएगा. मुझे ये नहीं पता है, मतलब ये नहीं कि आप जंप कर रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन इसका ये जो है सिर्फ लीनियर फंक्शन होगा, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन, या फिर इस तरह का फंक्शन होगा ax plus b where a is slope and b is y intercept. जी सर, Your बिल्कुल college स्ट्रेट लाइन का फंक्शन. mathematics. Alright, now this is a parabola function y is equal to x square, और हमें tangent find करना है at this point 1,1, x is equal to 1, y is equal to 1. ठीक है? ठीक है? Yes, Okay. sir. Alright, so how will you find tangent? So you know tangent एक स्ट्रेट लाइन है, उसकी इक्वेशन को हम जनरली ऐसे लिख सकते हैं. आप a की जगह पे अभी m लिखें, x plus b, m is a slope of what? Curve or line. Slope of tangent line, and then b is Y intersect. y intercept of the tangent line. तो m कहाँ से आएगा और b कहाँ से आएगा? सर डिफरेंशिएट करके आएगा. हमने डिफरेंशिएशन अभी तक नहीं पढ़ी बच्चे, मतलब मुझे डिफरेंशिएशन नहीं पता है. सर पहले हम इस इक्वेशन में वन एट अ टाइम ना भाई. सर इस इक्वेशन में पहले हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे x की वैल्यू 0 पुट करके. ओके, सो y इंटरसेप्ट फाइंड करना इजी है. यू जस्ट प्लग इन x इज इक्वल टू 0, तो वो आपका y इंटरसेप्ट आएगा. वेरी गुड सर. फिर हम y इंटरसेप्ट जब आ जाएगा तो हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y आ जाएगा हमारा. ओके, एंड हाउ, तो हमें चाहिए क्या चीज? हमें चाहिए m और b. सर b तो हो गया, m रह गया. m रह गया, m कैसे करेंगे? गुड. हम लाइन जो है लाइन पे हम एक लेंगे ओरिजिन, तो और एक दूसरा पॉइंट ये ले लेंगे b को, तो हमारा ग्रेडियंट आ जाएगा.
ग्रेडियंट का मुझे अभी हमें नहीं पता। सर 2 y की वैल्यूज लेंगे, 2 x की वैल्यूज लेंगे। ओके, y2 minus y1 upon x2 minus x1 स्क्वायर। तो वो आपका m के इक्वल आ जाएगा। ठीक। अगर हमें 2 कोऑर्डिनेट्स भी बताऊं तो उससे भी हम लोग इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। Any 2 coordinates of the line. This is what it is written here, right? We will be able to find an equation of the tangent line PS सर on सर yes. ये y इक्वल्स mx प्लस b जो इक्वेशन है, इसमें जो हमें p दिया हुआ है, बस हम y से फाइंड करके p की वैल्यूज डाल देंगे y और x की, वो m तो आ जाएगा। m क्या आएगा फिर? सर अगर हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स हो तो हम लोग एक में फर्स्ट एक इक्वेशन में एक बार पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट फिर सेकंड कोऑर्डिनेट बढ़ेंगे x और y के दोनों के ऑन द लाइन, फिर उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। No. विदाउट ग्रेडियंट फॉर्मूला से बता रहा हूँ। विदाउट ग्रेडियंट आप फॉर्मूले बता से रहे हैं अगर 2 कोऑर्डिनेट्स हो x और y के, तो एक बार हम लोग अगर सपोज 1 और 2 एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और 3,4 सर m1 आएगा। देखें हमारे पास 2 क्वाड्रेंट्स तो हैं x और y, मतलब, लेकिन x की 2 वैल्यूज नहीं है, एक की वैल्यू है x की और y की। और किसी ने कहा है कि m1 आएगा, आई एग्री विथ यू, ठीक है, लेकिन इट विल बी रियली फन टू नो हाउ m इज इक्वल टू 1। सर वही फर्स्ट पहले आप y इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, तो फिर आप उसके बाद इसमें y इक्वल्स टू mx प्लस b में आप Okay, wait, so पॉइंट b पुट is करेंगे। equal to b is equal to 1, this is 1 because कैसे कि so y intercept सर b will be 0 is when okay b is equal to 0, x is equal to 0। y intercept वो होता है ना जहां पर x is equal to 0 हो, जी सर, जी सर। ठीक है। तो आप किसका y intercept फाइंड कर रहे सर ये लाइन का, टेंजेंट का। हैं? सर इट्स पैराबोला, पैराबोला। पैराबोला का कर रहे हैं, जी जी बिल्कुल। तो उसके उसके पैराबोला के y इंटरसेप्ट से हमारा उसका लेना देना क्या है, टेंजेंट के उसका। सर m फाइंड कर देंगे हम उससे, उसका m आ जाएगा हमारे पास। अगर हम m फाइंड कर लेंगे तो टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी। पर b कहाँ से आएगा, जो नहीं y इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट कहाँ से आएगा? This is solution, read it, what is written here. Are you done? यस सर। देखें आप b फाइंड कर रहे थे पैराबोला का, यस सर। ठीक है ना। ये आपका पैराबोला है, इसका जब b फाइंड करेंगे तो वो नेचुरली 0 ही आएगा y इंटरसेप्ट, बट इसका जो, लेट मी फिनिश, इसका जो इंटरसेप्ट है, नाउ द ब्लू लाइन इज इंटरसेप्ट, ठीक है। इसका जो y इंटरसेप्ट है वो x इज इक्वल टू -2 -3 समथिंग, मतलब नेगेटिव आ रहा है, सॉरी नो नो नो, x इज इक्वल टू 0 पर ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन यस प्लीज। सर ये जो लास्ट एग्जांपल आपने जो दिखाई थी वो टेंजेंट नहीं, वो सीकेंट लाइन कहलाएगी, क्योंकि वो 2 दफा कट कर रही पॉइंट कर्व को। दिस वन? हाँ सर ये वाली। बट दिस इज टेंजेंट लाइन, दिस इज नॉट सीकेंट। इस पॉइंट पर ये टेंजेंट है, ठीक है। ओके, नाउ जब when you do not know about gradient, when you do not know about derivative,
and well, you need to know the slope somehow in order to have equation of the tangent line, and well, this is also difficult to find, let's say tangent, because you only have one point. So what you will do, you will just assume a general point, and supposedly very close to the point 1 comma 1. Okay, so this q over here, this is very close to this given point 1. This is very close to this one. Okay? And then considering these 2 points, we can compute slope as this one. So now the formula of the slope is, what is formula? M is equal to x2 minus 1. y2 minus y1. y2 minus 1. Okay, and so the points are, the first point is 1 comma 1, second point is x comma x square. Now this is general point or generalized point. Okay, and we want to have this x close to 1. आप 2 पुट करेंगे 4 आ जाएगा, you will still have slope. ठीक है, ठीक है समझ रहे हैं? लेकिन that slope will be slope of the curve, not the tangent line. अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर 2 फिक्स कर देते हैं, let's say if x is 2, then x square will be 4, और आपके पास फिर ये पॉइंट है, then slope will be of curve y is equal to x square, not tangent line. Am I making my point? सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, मतलब एक पॉइंट का जब स्लोप आ गया तो टेंजेंट भी तो उसी पॉइंट को मतलब टच कर रही है, तो उसका स्लोप भी सेम होना चाहिए. So this point P 1 comma 1, this is shared point, this is common point of the curve y is equal to x square and this tangent line which is purple line. ठीक है, ये इन दोनों की मुश्तरका पॉइंट है, सेम पॉइंट है. Now if you take any other point, for example you are taking x is equal to 2, यहाँ पर x is equal to 1 था. Now this is x is equal to 1 and let's say this is x is equal to 2. तो जब ये लिया तो जो कर्व पर पॉइंट होगी that will be 2 comma 4. ठीक है? Yes sir. And taking slope of this straight line or secant line, okay, so this will be slope of secant line joining these 2 points, but that slope can be called approximate slope of the curve y is equal to x square, but cannot be called the slope of the tangent, क्योंकि टेंजेंट उससे दूर है काफी, मतलब उसकी जो है वो डिफरेंट है. इसको मैं यहाँ पर प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ. चलिए, मेरी ज्योमेट्री बहुत नहीं सर, I was talking about point P. Point 3. Point P. I think yeah, you make sense के point P पर वो उनका slope same होगा. Yes sir, मैं यही कह रहा था. Now this is the point 1 1, this is P and this is Q जो कि 2 है. Now इस लाइन का स्लोप जो होगा वो आप फाइंड कर सकते हैं because you know the 2 points. Now slope of this line can approximate slope of this curve. ठीक है, but slope of this line cannot approximate tangent of this tangent line.
and let me write it. Slope of PQ line can approximate or may approximate slope of curve y is equal to x square, और वो भी between P and Q, 2 points, and but cannot approximate slope of tangent, green line. ठीक है, ये जो टेंजेंट है, ठीक है, सब अभी समझ आया है ना? यस सर। ये उस वक्त, ये लाइन उस वक्त इसको अप्रोक्सीमेट, सर ग्रीन लास्ट लाइन, ये रेड लाइन इस ग्रीन लाइन को उस वक्त अप्रोक्सीमेट कर सकती है जब ये Q जो है यहाँ की जगह पे यहाँ हो। ये इस P से जितना दूर होता जाएगा उतनी इस टेंजेंट से उसकी अप्रोक्सीमेशन बुरी होती जाएगी, ठीक है, अनएक्सेप्टेबल होती जाएगी उसकी अप्रोक्सीमेशन। अगर समझेंगे, फिर आपने यहाँ पर Q लिया है, नाउ दिस इज Q, 2 की जगह पे आपने ये ले लिया 4, ठीक है, तो यहाँ पॉइंट क्या बनेगा 4,16, और आपका ये स्ट्रेट लाइन बनी ना। इस स्ट्रेट लाइन और इसमें कितना बहुत ज्यादा आपको फर्क नजर आ रहा है ना, इसमें और इसमें, ठीक है। नाउ एज कंपेयर टू दिस वन, दिस लुक्स मोर लाइक दिस वन, उसका जो इस दोनों का स्लोप आपको रिलेटिवली करीब नजर आ रहा है। और अगर ये 2 की जगह पे ये 1.5 पर हम लेते तो अब ये इस ग्रीन के और करीब नजर आ रही है, ठीक है। यस सर। समझ आ रही है सर? जी जी सर। और जितना पॉइंट क्लोज लेते जाएंगे, जितना क्लोज लेते जाएंगे, वहां पर जो स्ट्रेट लाइन बनेगी दैट विल बी अप्रोक्सीमेटिंग टू टेंजेंट, उसका और उस छोटी सी लाइन का टेंजेंट का स्लोप और उस छोटी सी लाइन का स्लोप ऑलमोस्ट सेम होगा। जितनी दूसरी पॉइंट Q आप दूर लेते जाएंगे उतना उसका टेंजेंट लाइन के साथ स्लोप जो है वो उसमें फर्क ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। Did I make a point now? यस सर। ओके, सो इस P को तो फिक्स मतलब किया गया है ना, गिवन है, तो हम Q को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम उसको जनरल पॉइंट लेते हैं x, x स्क्वायर, और कहते हैं कि x इज वेरी क्लोज टू 1, मतलब देखें, दिस इज अगर आप में से कुछ के पास क्वेश्चन आ रहा होगा तो वेरी क्लोज टू 1.1 क्यों नहीं रखते? किसी के जहन में ये क्वेश्चन आया है? ऑनेस्टली बताएं। नहीं, किसी के जहन में भी नहीं है? नहीं सर। या ये क्वेश्चन आया कि 1.001 क्यों नहीं रख रहे हैं, वो क्लोज होगा? नहीं आया कुछ? बोले ये क्वेश्चन आपके जहन में आया कि एप्पल क्यों गिराया दरख्त से? न्यूटन की जो, मेरे जहन में क्वेश्चन मतलब बार बार ये आता है कि जब मैं बात कर रहा हूँ कि चलें x इज अ वेरी स्मॉल नंबर, मतलब बहुत स्मॉल नहीं, वो 1 के बहुत क्लोज हो ना, उनका 1 का और x का डिफरेंस बहुत कम हो, तो मैं 1.001 लिख दूं। जब ये ख्याल आता है ना तो फौरी तौर पे एक काउंटर ख्याल भी आता है कि 1.001 इससे छोटा क्यों नहीं ले सकते, मतलब सॉरी, इससे और नंबर क्लोज क्यों नहीं लेते 1 के, जो डिफरेंस उससे कम हो। तो जवाब आता है कि 1.0001, 3 मरतबा आप जीरो दें, ठीक है, तो डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा 0.0001 मींस 1/1000 जवाब आएगा डिफरेंस।
फिर से में ख्याल आता है कि 9.9999 नहीं ले सकते। उस तरफ भी ले सकते हैं, एक ये क्वेश्चन भी आता है कि अगर आप फिर आप अगर 0.7 दफा 999 लें तो the result will be it will be more close and the difference between 0.7 times 99 और 1 उनका डिफरेंस क्या होगा 0.7 times 0 and then 1 मतलब 1 divided by it's a million 7 zeros, ठीक है। तो ये तो बहुत कम डिफरेंस हो गया, लेकिन आपसे आगे भी कोई होगा जो सोच रहा होगा कि 7 दफा 9 क्यों नहीं लिया, 10 दफा टाइम्स लें, ठीक है, ताकि 1000 मिलियंस हो जाए। सर इस तरह 20 टाइम्स भी ले सकते हैं। So this is the point। इस पॉइंट से जान छुड़ाने के लिए, इससे मतलब निकलने के लिए, this is the most tricky part of this limit in calculus। तो हम just simply कहते हैं कि okay let's take x and say it कि x is close to 1। अब कितना क्लोज है, it's all up to you कि आप कितनी एक्यूरेसी अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। Can we proceed now, having agreement on this one? So we Yes. take general x and जहन में यही है कि x is very close to 1। अगर क्लोज नहीं होगा तो फिर ये वाली सूरत हाल हो जाएगी कि उस सीकेंट लाइन का जो स्लोप होगा इस टेंजेंट लाइन के स्लोप से बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, which we do not want to have। तो हम उसके क्लोज चाहते हैं, then this q should be very close to this one। तो वो टेंजेंट लाइन के एक जैसी दिखेगी, उनका स्लोप भी एक जैसा होगा। ओके, सो दिस पी पॉइंट और इतना क्लोज है कि वो बराबर भी ना हो आपस में। दिस इज स्लोप। नाउ दिस इज स्लोप ऑफ बेसिकली this secant line, but we can say that the slope of this secant line is approximately equal to slope of this tangent line। ये हम उस वक्त सिर्फ कह सकते हैं कि जब हम ये कहें कि Q जो है वो P के बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल करीब है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स लिए ना, x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 4, तो यहाँ पर भी ये एग्जांपल्स इस तरह इन स्लाइड यहाँ पर ये एक इस तरह लिया गया है। फॉर एग्जांपल x is equal to this, तो y आपका ये आ जाता है। तो q हमने लिया है लेट्स से 1.5 पे, तो स्लोप क्या बन जाएगा, एक जो p पॉइंट था वो 1 था, Q पॉइंट 1.5 एंड 2.2 इनका डिफरेंस लिया तो ये स्लोप बन गया, ठीक है। यहाँ पर देखें अगर आप 2 यूज करेंगे तो उसका स्लोप और जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। हम उस वक्त तक सही स्लोप टेंजेंट वाला नहीं कर लेते जब तक यहाँ पर मतलब उसके बिल्कुल क्लोजर ताकि पॉइंट तक न लेके जाए। हैविंग सम रैंडम वैल्यूज ऑफ x, रैंडम तो नहीं मतलब वेरी कैलकुलेटेड वन, कैलकुलेटेड इन अ सेंस के पहले बहुत दूर वैल्यू ली है 2, जो दूसरी पॉइंट ली है हमने q की, ठीक है ना। तो हमारा स्लोप जो आता है सीकेंट लाइन का जो स्लोप आता है वो 3 आता है। 1.5 लेते हैं तो 2.5 स्लोप आता है, और 1.1 लेते हैं तो 2.1 स्लोप आता है। 1.01 लेते हैं x की वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी मिल जाएगी, और हम जब स्लोप कंप्यूट करते हैं तो हमें 2.01 मिलता है। 1.001 पॉइंट यूज करते हैं तो स्लोप हमें ये मिलता है। यहाँ तक हम बस नहीं कर सकते, 1.40 क्यों नहीं लगा रहे, 1.60 क्यों नहीं लगा रहे, 1.70, 20 zeros क्यों नहीं लगा रहे। किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा कहा कि why 1.00 ओवर डिटरमाइंड वैल्यू क्यों ले रहे हैं, why cannot we take 0.999, वो भी इतना ही क्लोज होगा बट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक है ना, सही है। तो ये क्यों नहीं ले सकते, अगर जब ये लेते हैं
तो हमारे स्लोप्स इस तरह आते हैं। ठीक है, 0 लेते हैं, लुक एट दिस फिगर, x आप ये 0 लेते हैं और यहाँ जो बनता है सीकेंट जो बनेगा उसके करस्पॉन्डिंग स्लोप 1 होगा। सर दोनों को इक्वली लेंगे ना हम लोग? हाँ, दोनों का डिस्टेंस इधर से जाए या इधर से वो सेम डिस्टेंस रहता है, लेकिन स्लोप डिफरेंट आता है ना उन लाइंस का। ठीक है, सर अब मैं आपको एक बता रहा हूँ। अब x हमने 2 लिया है और x 0 लिया है, ठीक है, और जो हमें पॉइंट गिवन है दैट इज दिस वन, x इज इक्वल टू 1। तो आप x2 लें तो इनका डिफरेंस 1 होता है, x0 लें तो भी ये डिफरेंस 1 होगा, पर ये जो 0 से 1 आपका सीकेंट लाइन होगा इसका जो स्लोप होगा वो होगा 1। 0 to 1 जो लाइन है उसका स्लोप 1, और 1 to 2 जो लाइन होगी उसका जो स्लोप होगा दैट विल बी 3। मतलब वो बहुत स्टीप होगी लाइन, और ये 0 to 1 वाली थोड़ी सी यूं मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ आ रही है बात? ओके, इस सब से जो कंक्लूजन निकलता है, जस्ट रीड द क्लोजर q इज टू p, जितना हम q p के क्लोज लेके जा रहे हैं, मतलब x की वैल्यू 1 के क्लोज लेके जा रहे हैं, the closer x is to 1 and it appears, ये महसूस हो रहा है from table are these values that m is being close to 2। यहां से भी ये 2 की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो मार्जिन है ये कम होता जा रहा था। ठीक है, सही है, और यहां से भी ये 2 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अंडर डिटरमाइंड वैल्यू से शुरू हुआ 1 से, उसमें इंक्रीमेंट आई 0.5, 9, 99, 999, 49 एंड सो ऑन, ये 2 को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस मीन्स दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी 2। सही है, ये वो तरीका है स्लोप फाइंड करने का टेंजेंट का व्हेन यू डू नॉट नो द डेरिवेटिव, क्योंकि लिमिट्स आपके डेरिवेटिव से पहले आते हैं। आपको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट जैसे पता नहीं है तो आप कैसे करते हैं। ठीक है, और इस चीज को, ये जो चीज यहाँ से हमने कंक्लूड की है कि भाई m is equal to 2, m is tangent of this sorry slope of this tangent line, ये 2 के इक्वल होगा। इसको मैथमेटिकल कैसे लिखते हैं? नाउ यहाँ से लिमिट प्रॉब्लम ने जन्म लिया था, मतलब द ओरिजिन ऑफ द लिमिट प्रॉब्लम वाज दिस के द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन शुड बी 2। मतलब ये मैं यहाँ लिख चुका कि सजेस्ट हो रहा है। नाउ वी से दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन is the limit of the slopes of all secant lines, and we express all secant lines, उनकी जो लिमिट होगी, अब देखें, slope of tangent line is the limit of slopes of all tangent line, limit of slopes of all tangent lines. So let's focus on this one, स्लोप्स ऑफ ऑल टेंजेंट्स लाइन। हमें यहाँ पर कितनी लाइंस नजर आ रही हैं? 1, 2, 3। वो कह रहा है कि बहुत सारी इस तरह की सीकेंट लाइंस हैं, उनका स्लोप कन्वर्ज करता जा रहा है ना। ये लाइन हमने ली थी व्हेन x इज इक्वल टू 4 लिया था, फिर 2 लिया था, फिर 1 लिया, 1.5। तो ये कन्वर्ज कहाँ कर रहा है स्लोप? लिमिट कहाँ उनकी जा रही है? 2 को जा रही है, ये देखें यहाँ। ठीक है, तो इसको हम ऐसे मैथमेटिकल ऐसे लिखते हैं कि लिमिट ऑफ दिस स्लोप, उस सीकेंट लाइन का जो स्लोप है पी क्यू इज इक्वल टू दिस m इज स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन व्हेन q अप्रोचेस टू p। यहाँ देखेंगे तो ये q
पहले बहुत दूर था, ये उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता आधा आधा स्टेप लेके या उससे ज्यादा भी स्टेप लेके जा रहा है पी की तरफ, क्यू जो पॉइंट, ठीक है। और इसी चीज को सिंपल लिमिट्स में इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, यहाँ पर तो पी और उसकी पी क्यू लाइंस और पॉइंट्स के टर्मिनोलॉजी में लिखा है और स्लोप की टर्मिनोलॉजी में लिखा है। यहाँ स्लोप की डेफिनेशन यूज करके कि y2 minus y1 divided by x2 minus x1 लिमिट ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इसका मतलब है x हम वो वाला पॉइंट लेंगे जो a के बिल्कुल क्लोज हो, जैसे यहाँ ये मैंने लिखा था ना, ठीक है। तो x वो पॉइंट होगा जो a के बिल्कुल क्लोज हो, एंड दिस विल अप्रोच टू 2, इसका जवाब जो आएगा वो 2 आएगा। और इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये चूंकि यहाँ पर तो हमारा टॉपिक आगे है, बट आई थिंक मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो के लिमिट प्रॉब्लम्स आप कैसे सॉल्व करते हैं ना, किए हुए हैं ना कॉलेज में। यस सर। तो मतलब आप वहां सिर्फ ये करते हैं कि लिमिट्स कैसे कंप्यूट करते हैं, बस इतना सा करते हैं, एंड ये थोड़ी सी जो एक्सप्लेनेशन है इनकी इन डेप्थ वो नहीं करते, ठीक है। So this is how limit problems came into being, originated from this tangent problem, and once you have this slope, using this equation of slope point form, तो आप वो भी यूज नहीं करेंगे, mx plus b, ये इंटरसेप्ट वाला नहीं चलेगा, बिकॉज यू डू नॉट नो द y इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो लेकिन आपको एक पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट जो गिवन था, इसी पॉइंट पर ही तो आपको टेंजेंट फाइंड करना है ना, या टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये पॉइंट टेंजेंट पर भी है और कर्व पर भी है, y is equal to x square, ठीक है। तो कौन सा इक्वेशन का या स्ट्रेट लाइन ऑफ टेंजेंट का कौन सा फॉर्म यूज होगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म और स्लोप पॉइंट फॉर्म ये है वो y minus y1 is equal to m x minus x1 to write the equation of the tangent। इसमें x1 और y1 आपके ये हैं, m आपका 2 यहाँ से, and you get this equation without finding derivative or without let's say calling the very difficult terms of like gradient और आप पता नहीं कुछ कह रहे थे बहुत कुछ, सही है। so this is limit problem basically, ठीक है। ये मैंने कोशिश की हाथ से करने की, बट my geometry skills are like, so q approaches p from the right. Now you see the difference between q and p is much more as compared to this one, because q is going to p, और यहाँ it feels like yeah, q is going to p, q, okay, so q is approaching to p, is going to p from the right side, ठीक है। मतलब ये ग्राफ्स इस तरह हैं, लेकिन q जो है ना वो x की राइट से नेगेटिव p वहां पर है, वो उसकी तरफ इस तरह जा रहा है, तो we call it from right, ठीक है। ओके इसमें जो Q है it approaches from left, so Q approaches P from left। यहाँ पर डिस्टेंस P और Q का ज्यादा है, ये कम हुआ तो आप देखेंगे कि दोनों ब्लू एंड जो ये पर्पल लाइन है दे आर मैचिंग, देयर स्लोप इज आई मीन बीइंग अप्रोक्सीमेटली इक्वल। जितना Q P के करीब जा रहा है उतना उनका स्लोप सेम आ रहा है। सो ग्राफ्स हमें इस तरफ जा रहे हैं, बट ये Q आपके लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं। ओके, so in both cases as Q approaches P, now along the parabola, what does this mean? ये जो लिखा हुआ है Q approaches P along the parabola,
इसका मतलब क्या है? Are you there? सर पैराबोला के पाथ को फॉलो करते हुए। वंडरफुल। ये QP की तरफ जा रहा है, इसका एक तो ये तरीका भी है कि ये स्ट्रेट अवे सीधा चला जाए, बट अलोंग द पैराबोला, इट मींस कि ये इस पैराबोला का जो कर्व है या जो ये पाथ है इसके अलोंग जा रहा है, इसके अलोंग उसके स्टेप्स हैं, ठीक है, इसी पर है, फुटप्रिंट्स वहीं पर है, वो वहीं से जा रहा है। ये देखें Q यहाँ आ गया कर्व पर, यहाँ पर भी तो आ सकता था ना, इस पर सीधा सीधा straight, no, along the parabola then the corresponding secant lines rotate about point P and तो ये आगे जाके इस तरह अप्रोच करती हैं, ठीक। this is the, I mean, the question, the tangent line from where the concept of limit emerges. Very similarly, फिजिक्स में जो वेलोसिटी प्रॉब्लम था, दिस वाज आल्सो इन सर्टेन, लेट्स से रीजन और सर्टेन टाइम वाज द, लेट्स से द कॉज ऑफ द लेट्स से द कॉज ऑफ दिस लिमिट प्रॉब्लम, इसकी वजह से लिमिट प्रॉब्लम वेलोसिटी प्रॉब्लम की वजह से। और वेलोसिटी प्रॉब्लम क्या है कि वो डिस्टेंस के बीच में और डिस्टेंस एंड टाइम की जो रेशो और ऑल दीज थिंग्स। तो अगर आप उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं तो let me just go through in a quick, but let me ask you, are you feeling bored, burdened? Yes, sir. Yes, sir. Do we need to take break 10 minutes and then Say 15 minutes or only. Sir, only 15 minutes are left. so well, we can continue, it's online session. nahi Sir, we have been taking class since 9 o'clock. Yes, sir. Yes, sir. लंच भी नहीं किया अभी तो। मैंने भी नहीं किया। Can we just study सर till बिस्किट खा 3:45 रहे थे। फिर क्लास एंड करते हैं? ये देखिए, मैं लंच मैंने बिस्किट्स रखे हुए हैं and I just couldn't have it. सर कितनी स्लाइड बाकी हैं? इसका एक तरीका ढूंढते हैं, चलें। There is not much in this velocity problem. This is again just to, I mean, highlight के limit problem यहाँ से आया था ना, velocity problem से। So I leave it for you, just go through it. There is not much, I mean, difference or difficult things in this problem. So this was introduction of limit, and next part about limits is, do you see my screen, right? Yes, sir. Yes, sir. सर वो रिकॉर्डिंग्स और स्लाइड्स वगैरह अपलोड करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को भी बता दें। Yep. So next is limit of a function. ये तो लिमिट आई कहाँ से थी, उसका फिजिकल अप्रोच। तो लिमिट ऑफ फंक्शन थोड़ा बहुत आपको पता है। So if you, I mean, remember this definition which I love, and this will help you to understand the sense of its, I mean, limit concept. So to find the tangent to the curve or velocity and object, ये जो दोनों examples हमने पहली slides में अपने देखे, and now we turn our attention to limits in general, and numerical and graphical method for computing them. So numerical general methods का in example से drive करके, so let's, this function x square minus x plus 2, let's investigate behavior of this function near the values of 2. Basically हम 2 पर उसका limit find करना चाह रहे हैं, but so this is the way of, let's say, starting how we can find the limit of the function. So we check the behavior of the function from the negative of the 2 and from the right positive of the 2. So not even or not or, and remember, not exactly at 2, just in its, I mean, neighborhood. तो ये मतलब आपकी इंस्टिंक्ट में भी होती है ह्यूमन के, कि अगर आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, and if you do not really want to
आई मीन गेट इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट के आपका ब्लास्ट हो जाता है कहीं, मतलब ब्लास्ट इन द सेंस कि आप अनहोनी चीजों होने से डरते हैं, ठीक है ना। For example, okay, let it put me in a very clear way. I want to propose someone, ठीक है, and I do not know whether she is married or not. So I will just get information from her left and from her right, okay, whether she is available or not. ठीक है. So this is what I mean, our instinct. This is how our instinct works, right? ठीक है. और यही सेम वो instinct जो है functions का behavior जानने के लिए, if I want to know the behavior of the function h2, I will try to know its behavior in its left neighborhood and in its right neighborhood, ठीक है, उसके लेफ्ट राइट से. सो 2 पर मुझे फंक्शन का नहीं पता बिकॉज आई एम वेरी अफ्रेड टू आई मीन डायरेक्टली प्रपोज और डायरेक्टली नो द वैल्यू ऑफ फंक्शन के वो अनडिफाइंड ना आ जाए, इन्फिनिटी ना आ जाए. समझ रहे हैं अभी बात कि फंक्शन 2 पे में भी अनडिफाइंड हो. लेट मी चेक इन इट्स नेबरहुड कि वहां पर क्या आ रहा है. मैंने शुरू किया 1 से, उसके करीब 3 जाना शुरू किया 1.98, फिर उसके राइट 3 से शुरू किया एंड 2.001 तक. और मैंने देखा कि जो रिजल्ट्स आ रहे थे ये मुझे 4 की तरफ जाते हुए महसूस हुए, ठीक है. दिस मीन्स so when limit x approaches to 2 of this function, हेलो अनान बात करता हूँ मैथमेटिक्स. I think you dialed the wrong number. Okay, so ठीक है, इसका मतलब है कि लिमिट आपकी जो है वो 4 की तरफ जा रही है. सो दिस इज व्हाट लिमिट ऑफ जनरल फंक्शंस इज. ग्राफिकल उसको ऐसे देखेंगे आप, ये x आपकी राइट से 2 की तरफ जा रही है और ये लेफ्ट की तरफ से 2 की तरफ जा रही है. तो ये जो कर्व है ये आपका यहाँ से और यहाँ से इस पॉइंट जो कि 4 है की तरफ जाता हुआ आपको फील हो गया, महसूस हो रहा होगा. ये कर्व आपका 4 की तरफ जा रहा है, ठीक है. मोर एक्सप्लेनेशन नोटेशन हम इसको डिनोट इस तरह करते हैं एंड दिस इज वेरी फॉर्मल डेफिनेशन कि किसी एक पॉइंट ए पर फंक्शन की लिमिट एल, उसको हम ऐसे लिखते हैं, मतलब जस्ट आई मीन मैथमेटिकल, और उसको पढ़ते हैं ऐसे, द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स equals to L when x approaches to A or as x approaches to A. Just read these slides and yeah, this is again notation only. So this is notation, this is I think I do not know if it will be very good for the learning. इतना जो burden हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इनका वीडियोस बना के अपलोड कर दूं, ठीक है. उसमें एक्सप्लेनेशंस भी बेहतर हो जाती हैं. और so this limits chapter, so we are ending I mean till here. Okay, sir. Okay, so part 2, well, nevertheless slides are already uploaded on the LMS, और वो जो हैंडआउट्स थे पाल डॉल्फिन के नोट्स जो हैं वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं. एंड इन फॉलो अप I will also give you some assignment on the basics of the limits. तो वो अपने इसी वीक करने हैं, ठीक है. हर वीक का काम लिमिट पे उसी वीक कर दिए करेंगे. हर वीक में आपको असाइनमेंट होगी एंड इन द एंड I will accumulate all the assignments, ठीक है. If you have any question, write me. जी बाबा. फंक्शंस का असाइनमेंट नहीं दे देगा.
फंक्शंस का हाँ फंक्शंस को दे तो भी आपने लिमिट क्या कर दी? फंक्शंस की डोमेन और रेंज का भी होगा. सो अवर सेकंड वीक इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. तो आप अभी अगर किसी ने एलएमएस देखा है तो उसमें मैंने जो लेसन बनाया है अभी, दैट इज फॉर पार्ट 2 and such a similar lesson will be for part 1 where domain and range will be, I mean उसके जो handouts हैं रखूंगा मैं और उसकी assignment. ठीक है. एलएमएस की स्लाइड्स तो अपलोड नहीं हुई है। लेसन जो है ना सेकंड वीक में, उसमें आप अंदर जाएंगे तो वहां पर उसमें है लेसन में. सर वहाँ लेसन दिख नहीं रहा है। सर नॉट एबल सर आप रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट करना है बच्चे? सर वही लेसन्स के बारे में। हाँ ये मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देखिए. ये हमारे, आप इस तरह कोर्स पेज पे जाएंगे. ठीक है. कैलकुलस 1 एंड दिस इज वीक एंड दिस इज वीक 2. ओके ये तो हिडन है स्टूडेंट से वाकई. ओके सॉरी माय बैड. ट्राई एडिट ऑन एंड शो दिस वीक. इसको फिलहाल हाइड करता हूँ मैं, वीडियो स्लाइड्स भी हाइड करता हूँ because ये previous उस पे है. Now this is week 2 lesson. I hope you can see this, right? Week 2 part 2 limits. Yes. And there will be a similar lesson week 2 part 1. ये होगा domain and range. ठीक है. ओके सर. और ये जब आप इसमें जा रहे हैं ना लिमिट्स वाले वीक में, तो ये आपकी 6 स्लाइड्स पड़ी हुई हैं 1 2 3. और जब नेक्स्ट जाएंगे तो आपके हैंडआउट्स होंगे, अभी नजर नहीं आ रहे लेकिन थोड़ी देर में आ जाएंगे. ये आपके नाम नोट्स ऑफ द चैप्टर लिमिट्स ये पड़े हुए हैंडआउट्स, यहाँ डाउनलोड करेंगे, ये पूरा पीडीएफ आपका आ जाएगा. ठीक है. यस सर. ओके सर. ओके एनीथिंग एल्स? नो सर. सर वो व्हाट्सएप ग्रुप का बता दें अगर वो बन गया तो. व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है. सर कोई लिंक शेयर कर दीजिए। मैं एक फोरम भी ओपन करता हूँ एलएमएस वो पे. ऑलरेडी वो ओपन कर दिया आपने, वो फोरम लगा दिया आप जी उस सर। पे डिस्कस. फोरम कहाँ पर है मुझे तो नजर नहीं आ रहा. ये व्हाट्सएप ग्रुप का फोरम आपने अभी ऊपर करने थोड़ा सा सर. दिस वन. हाँ ओके. तो इसमें लिंक है ना बच्चे, उसमें आप सर इसमें मिल नहीं रही, उसमें लिंक इसने लिख रखी है. इसने ये जो है कौन है ये, दिस इज द लिंक. ओके सर थैंक यू. ठीक है. ओके सर. तो इसको क्लिक करके ज्वाइन कर लें. और इस ग्रुप पे भी मतलब आप व्हाट्सएप ये जो फोरम है ना, इस पे भी डिस्कस किया करें. आपकी एलएमएस की जो एंगेजमेंट है ना, और यहाँ पे रहना, और ये एलएमएस पे रहना, मतलब ये आखिर में काउंट होगी. ये लोग एडमिशन वाले करते हैं आपके लिए. सर जी बाबा. जी सर आप बाबा. प्रोग्रामिंग की लैब के बारे में क्या बता रहे थे? सॉरी किसके लिए? प्रोग्रामिंग की लैब के बारे में. आई फॉरगॉट इट कि मैं क्या बता रहा था. मेरा ख्याल है कि आपका सेशन क्रिएट हो चुका है और आप सारे उसमें इनरोल हो चुके हैं जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं. सर आपके मेरे पास साथ तो शो नहीं हो रहा. आप मुझे ईमेल लिख दें. ठीक है. ओके सर. कि मैं इनरोल नहीं हूँ अभी और आई एम इन फर्स्ट सेमेस्टर, तो मैं उसको फॉरवर्ड कर दूँ. ठीक है. भाई यूनिवर्सिटी कब से खुली है? आई एम नॉट श्योर. फर्स्ट फेज से कुछ क्लासें ऑन कैंपस हो रही हैं, वो क्लासें जिनमें अटेंडेंस 20 से कम है. ओके सर. ठीक सर है. सेकंड सेमेस्टर वालों की? नहीं, अगर किसी के फर्स्ट सेमेस्टर में भी 20 से कम क्लासेस हैं तो वो भी ऑन कैंपस होंगे, लेकिन क्या है कि क्लास 20 से कम हो.
अच्छा सर, जो अगर पिछली बार की तरह 2 ग्रुप में नहीं डिवाइड कर रहे? उसमें बहुत इश्यूज हुए थे, आधे स्टूडेंट्स पढ़ पाते थे आधे नहीं, तो इस पर डिफरेंट डिसीजन ये है कि जिन क्लासेस की अटेंडेंस 20 से कम है वो कैंपस पर क्लासेस होंगी, या फिर वो क्लासेस जिनकी टीचर और स्टूडेंट्स दोनों स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें फेस टू फेस पढ़ना है। ओके सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अगर कोई क्वेश्चन हो किसी को तो व्हाट्सएप कर दिए करें, सर आएगा करें जी बाबा। आप रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे प्लीज? मैं कर देता हूँ, मैंने पिछली भी नहीं की, आई डोंट नो मुझसे कैसे हो कर दे जी हो गई, तो मैं लिंक्स अभी थोड़ी तौर पे रख देता हूँ। ठीक है सर हाँ? ओके थैंक यू। सर अटेंडेंस मार्क कर दी आपने?